My dear students, you are welcome to my YouTube channel. So today we are going to solve one very interesting and important problem asked in the previous year CBSE board exam 2018. So this question is basically related to the electrostatics force chapter 1. So what is the question? In this question we are having 4-point charges which are kept at the side at the corner of a given square of size A. So this is basically a square having side A, and we are having 4-point charges Q, capital Q and small q. Okay, so now we have to find out resultant force due to these point charges. So how we will solve this? Basically we will apply Coulomb's law. So we know that according to the Coulomb's law, if we are having 2-point charges kept at a certain distance, then force or resultant force given by F is equal to, basically first of all how we will proceed it. So in this question it is asked resultant electrostatics force, resultant electric force on charge Q. So we can take any charge, that is capital Q, this charge or this charge. हम कोई भी दो में से एक चार्ज को ले सकते हैं जिस पे अपने को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये चार्ज दे रहा हूं मैं. ओके, सो क्या होगा यहाँ पे कि फर्स्ट इन दिस चार्ज, इफ आई एम टेकिंग दिस चार्ज, सो आई हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू दिस 3 charges on this charge. So how we will find out? So first we will calculate force due to this small charge on this, and then force between these 2 charges, and then force between these 3 charges, and after that we will take resultant. Okay, so just look at how we are going to solve it. So first of all, if Q, this charge Q is up, so first force between this charge Q and this charge Q, so small charge Q and capital Q. So I am taking the direction of this force B here, and I am taking this force as F1, and again this small q will the force will act between this small q and capital Q. So I am taking its direction towards this. I am assuming it F2. Okay, so now हम लोग ने दो चार्जेस के लिए हम ये F1 और F2 तो फाइंड आउट कर लिया. अब ये थर्ड कैसे होगा? सो दिस विल एक्ट इन डायगोनल टुवर्ड्स डायगोनल. जो इसका डायगोनल होगा वो डायगोनल के अलोंग ये फोर्स इस पे अप्लाई होगा. सो इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन डायगोनल के अलोंग हो जाएगा, राइट? सो आई एम टेकिंग इट F3. Now we have to find out F1, F2, and we will take its resultant of F1, F2 and F3. Is it clear? So now, as per the Coulomb's law, we can write F1 is equal to F1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and small q and capital Q. Small q and capital Q. So this is small q into capital Q. And what is this distance? This is square. Okay, ये क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ कि स्क्वायर है. अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसकी 2 साइड्स होती, बट स्क्वायर है तो एक साइड दिया हुआ है तो ये भी a ही होगा. This is a, this is a. So now how we will find out this diagonal? Nothing. We will just apply Pythagoras theorem. So this will be what? A root 2. Okay. So this diagonal is a root 2. So this distance is a square. So we got F1. Similarly, F2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught F2 small q and capital Q upon a square again. Now what would be F3? So F3 is equal to the distance between these 2 charges will be a root 2, that is the diagonal. So 1 upon 4 pi epsilon naught and capital Q, it means Q square upon this distance a root 2. It means a root 2 का हम स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर. ओके,
लुक एट दिस। अब हम क्या करना है, यहाँ पे कुछ मैकेनिक्स यूज करना है वेक्टर रिजोल्यूशन का। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस या फिर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हम लेते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए F1 एंड F2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए F1 और F2 परपेंडिकुलर होंगे और इन दो फोर्सेस का जो डायरेक्शन होगा वो इस फोर्स थर्ड के अलोंग होगा। तो क्या करेंगे, पहले F2 एंड F1 का रिजल्टेंट लेंगे एंड देन F3 में ऐड कर देंगे। तो अब देखिए यहां पे लिखेंगे सिंस F1 एंड F2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore F रिजल्टेंट जो हो जाएगा, सपोज करते हैं therefore रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। तो हम क्या कर रहे हैं, F1 और F2 का रिजल्टेंट ले रहे हैं। ओके, सो F1 F2 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सपोज करते हैं दिस इज F डैश एंड फाइनली वी विल हैव रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। ओके, सो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो फाइनली वी विल हैव रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सो F1 एंड F2 है यहां पे हम देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फाइनली ये F1 F2 हम देखेंगे तो ये टोटल जो टर्म कांस्टेंट है वो तो सब में कांस्टेंट हो जाएगा, a स्क्वायर भी है, a स्क्वायर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर हम ऐसा करें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k एज्यूम कर लेता हूं, k, और देखिए F1 और F2 तो दोनों सेम है ना, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं 2F1, तो 2F1 हो जाएगा। तो F1 में इसमें किसी को भी ले लूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन a स्क्वायर, F1 इसका स्क्वायर आएगा और रूट में है तो वो भी आ जाएगा, तो यहां पे रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, F डैश हो गया, राइट। तो ये F डैश मिल गया। अब देखिए F डैश हो गया, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स F1 F2 का हो गया। अब इनका जो डायरेक्शन निकालेंगे हम वो कैसे निकालते हैं, टेन थीटा इक्वल टू निकाल लेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, डायरेक्शन हमको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे जो जब कोई परपेंडिकुलर फोर्स होता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 45 डिग्री पे होता है। इट मींस ये डायगोनल भी 45 डिग्री पे है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा F डैश इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F डैश एंड F3, resultant force of F dash and F3 क्या हो जाएगा, F is equal to F dash plus F3। तो फाइनली F dash इक्वल टू ये हो गया और F3 यहाँ पे है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये पूरा ये कॉमन है और ये कॉमन है, राइट। सो अब क्या बच गया हमारे पास, a स्क्वायर भी कॉमन है, a स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन चलिए पहले सॉल्व करते हैं। अब जैसा भी आएगा तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए और उसके बाद क्या है Q अपॉन a स्क्वायर रूट 2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लेना, कोई इशू नहीं है, जितना भी समझ में आता है जैसे भी, बट यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट इतना आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें से Q कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, रूट 2 को डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली F इज इक्वल टू, यहां से आप Q कॉमन ले लो, Q रूट 2 हो जाएगा और यहां पे इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर कर देंगे तो यहां पे 2 जाएगा तो Q हो गया 2 रूट 2Q प्लस
क्यू। हाँ ठीक है, इतना ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर।